وصلی اللہ روح محمد فی الارواح وصلی اللہ قدرت محمد فی الشعور وصلی اللہ اسم محمد فی الاسماء وصلی اللہ نفس محمد نفس وصلی اللہ قلب محمد فی القلوب وصلی اللہ صبر محمد فی القبور وصلی اللہ روڈات محمد فی الریاض وصلی اللہ جسد محمد فی الاشاد وصلی اللہ قربات محمد فی التراب وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب السکر وعذاب الصلاۃ وعذاب جہنم وقنا عذاب النار آمین اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ملیا مالا لائی دی جائیں کہ لوگ دہڑے مار مار کر رہے ہیں تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو ہر حوالے سے اللہ حافظ مہربانی السلام علیکم اب میں جناب پرنسپل غرض انتقال سیڑا استاد غفار احمد صاحب یہ بھی میرے اور ان کے استاد ہیں میں ان سے گزارش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جنازہ بذات خود ایک کہانی ہے اور سچی کہانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو نصیحتیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک نصیحت تو بولتی ہے اور ایک بولتی ہے بولنے والی نصیحت جو ہے وہ قرآن مجید کا ہے اور نہ بولنے والی موت آئے دن ہمیں وہ جو اموات ہے ان سے پالا پڑتا ہے عبد الرحمن میرے شاگردوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور یہ سلیم الفطرت آدمی سلیم الفطرت کیا ہوتا ہے اس کی میں تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ ایسا انسان جو کسی بھی رنگ کسی بھی مذہب اور کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو اگر وہ اندر سے صاف ہے اور اس میں علائشی نہیں ہے تو اس کو سلیم الفطرت کہتے ہیں یہاں تک کہ ہندو اور عیسائی بھی سلیم الفطرت ہوتے ہیں مثلا ہندو کے متعلق میں نے یہ پڑھا ہے کہ بہت سارے ایسے ہندو ہیں جن کی موت نہیں ہوتی اور وہ کئی دن تک وہ جو نزع کی حالت ہے اس میں وہ رہتے ہیں ان کی جان نہیں نکلتی تو بالآخر وہ اپنے کسی سیانے کو جا کے کہتے ہیں کہ یہ 5 دن سے یہ 6 دن سے اس کی سانس نہیں نکل رہی ہے تو ہم کیا کریں وہ کہتے ہیں پھر اس نے کو نہ کرنی کرواؤ نہ کرنی یہ ہے کہ کسی مسلمان کو بلا کے اس کے پاس بٹھاتے ہیں اور مسلمان کو کہتے ہیں کہ اس کو کلمہ پڑھاؤ چنانچہ وہ مسلمان اس کو کلمہ پڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا روح جو ہے پرواز کر جاتا ہے اب یہ کیا وجہ ہے اس پر یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں جو میں نے اس عمل میں پڑھے ہیں یہ کیا وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان اندر سے علائشوں سے پاک ہوتا ہے ظاہری تو کوٹا کاٹی ہم کرتے ہیں نا وضو بھی کرتے ہیں غسل بھی کرتے ہیں لیکن من کا صاف ہونا یہ بڑا مشکل ہے اور
मैं एक बात आपको बताता हूँ कि सेड़े में हमारा एक लेक्चर जो है वो गायब हो गया केमिस्ट्री का, और हमारे महकमे का जो दस्तूर है वो यही है कि आप इंतज़ार करते रहें। तो मैंने रहमान को टेलीफोन किया कि भाई आपने 2-3 महीने आके केमिस्ट्री पढ़ानी है, और ये शख्स तते पानी से फ़राइज़ को छोड़कर बतौर नफल तदरीस करता रहा, और एक उस्ताद की जो नफल इबादत है वो पढ़ाना है। अगर उस्ताद अपने फ़राइज़ से आगे बढ़कर एक कदम पढ़ाता है तो ये समझे कि वो अंतई सलीमुल फितरत है और वो अंदर से साफ। इसके अलावा ज़िक्र अज़कार भी करता था, मेरी इसके साथ बड़ी एफिलिएशन थी, गपशप भी लगाते थे। और मैंने ये भी कहा कि भाई बात क्या है, अब शादी में क्या देर है? तो इसने कहा जी कि एक कमशीरा का मसला था वो हल हो गया है, अब मैं इसके बाद जो है शादी के लिए तैयार हूँ। और किसी जगह से कोई रिश्ते की बात भी मुझ तक पहुँची, कोई बात चल रही थी, तो मैंने वो उसमें जो रिमार्क्स दिए मैंने वो दे दिए थे। बहरहाल एक बात बताऊँ कि सूरह बनी इसराइल की एक आयत है कि इकरा किताब कफ़ा बे नफ्सिकुल यौम अलैका हसीबा। इसका मानी है कि तुम पढ़ी, अपनी किताब पढ़ो। ये उस कैफियत को ज़ाहिर करती है जब हम कब्रों से बाहर निकलेंगे और नामा अमाल में हाथ होंगे, अपने नामा अमाल में किताब होगी, तो अल्लाह जल्ल शान कुरान मजीद में कहते हैं इकरा किताबक, पढ़ अपनी किताब, कफ़ा बे नफ्सिकुल यौम अलैका हसीबा। आज तुम्हारा अपना नफ्स ही खुद इसका मुहासबा करने के लिए काफ़ी। हम हर रोज़ जो अपनी डायरी लिख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम शाम को जब पहुँचते हैं तो उसकी डायरी की 2 कैफियत होती हैं। एक ये कि हम सुरखरू होकर वापस आते हैं, और एक ये है कि अपने आप को जलील करके वापस आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये अजीज़ ये जो रोज़ डायरी लिखता था वो अच्छी डायरी थी, और हमें जो बैसियत इंसान गमान है वो यही है कि अल्लाह ताला इनके साथ बेहतर मामला करेगा। इसकी ज़िंदगी हमारे लिए मशरे रात, दोस्तों के लिए, नौजवानों के लिए, तो हमारे लिए ये बड़ी सदमे की बात है, लेकिन राज़ी पर रज़ा होना चाहिए। मैं अपने चंद दोस्तों से जब मौत का जिक्र करता हूँ तो मुझे कहते हैं कि तुम कब्र अज़ाब क्यों जिक्र करते हो? आज सुबह मैंने उन्हें कहा बताओ मेरा जिक्र दुरुस्त है या गलत है? कल अब्दुल रहमान हमारे साथ था, क्लास ली उसने, वहाँ से चला गया और आज वो हमें मौजूद नहीं है। तो कसरत से मौत को याद करने वाला इंसान जो है उसको लोग याद रखते हैं, और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दें। आबिद साहब, अगर कोकूटा से प्रिंसिपल आबिद साहब हो तो वो आगे आ जाएं। एक स्टूडेंट 1 मिनट के लिए। जायद थले जगह थी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुने कौन किस्सा दर्द दिल, मेरा गम गुसार चला गया, जिसे आशनाओं का पास था वो बाशार चला गया, पिछड़ा कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को हैरान कर गया। अगरचे रब्बे काबा ने कहा कुल्ली नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और शख्स ने मौत का जायका चखना है, लेकिन मैं कहता हूँ इस मुजाहिद इस्लाम मर्द मोमन इल्म के समुंदर का यूँ हमसे अचानक बिछड़ जाना इस दुनिया पूरी के लिए एक सदमे का बायस है। ये उस्ताद अजीम, मैं मौजूदा इनका तालिब इल्म था। उस्ताद अजीम वो अजीम उस्ताद थे जो अपने बच्चों को, जो गरीब और नादार बच्चे थे, उनको खुद किराए के लिए पैसे देते थे, और उनको घर पे बुला के खुद अपने हाथ से खाना देते थे, खुद अपने हाथ से पानी देते थे। ये उस्ताद अजीम जो खुद अपने पैसों से अपने नादार तालिब इल्मों को, जैसे इफ्तार साहब ने बताया, उनको स्वेटर लेकर दिया करते थे। इसी तरह मैंने देखा कि 3-4 दिन पहले दिन की ये बात है कि उस्ताद अजीम ने हमारे एक साथी को शीटों के लिए पैसे दिए कि बेटा कल आते हुए शीटें ले आना ताकि तुम आराम से टाइम दिया करो। और मैं बदकिस्मत स्टूडेंट हूँ कि कल के दिन मुझे आखिरी दिन इनके साथ मुलाकात करने का मौका नहीं मिल सका। उससे पहले ये मुजाहिद इस्लाम, ये मर्द मोमन अल्लाह के फजल करम से जब भी हम पीरियड लेते थे, पहले यानी 9 बजे काली लगता था, उससे पहले मर्द मोमन उस वक्त तक क्लासरूम के अंदर दाखिल होने तक अपनी तस्बीह को जारी रखते थे। गाड़ी से उतरते तस्बीह होती, हर वक्त इनके पास तस्बीह होती। मैंने देखा कि एक बार मैं और मेरे वालिद मोहतरम के घर आए पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा कि एक साइड से दरवाज़ा बंद था। मुझे वालिद साहब कहने लगे कि दूसरी साइड पे जो वो के आए वो मैं पढ़ाने के लिए आए। तो साथ ये भी कहा कि देखना ये मर्द मोमन किस काम में मसरूफ़ होगा, यकीनन वो अपने काम में मसरूफ़ होगा। मैंने खुदा की कसम में जाकर देखता हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम अपनी माई साहबा के चारपाई की गोद उसके पहलू में बैठे हुए हैं और तस्बीह हाथ से जारी रखी हुई है। वल्लाह आलम आज तक तारीख में मैंने अपनी जो भी तालीम जारी रखी, अपनी महदूद तालीम में इनके मोतियों की इन माला के सामने मैं तो कुछ भी नहीं। लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इस मर्द मोमन तक जैसा आज तक मैंने किसी भी
अल्लाह करम, अल्लाह की कसम है कि किसी वली के वाक़यात पढ़े, बड़े बड़े लोगों के वाक़यात पढ़े, बड़े बड़े हीरो जो गुजरे उनके वाक़यात पढ़े, लेकिन वल्लाह आलम इस जैसा मुकम्मल, इस पाक हस्ती जैसा मुकम्मल इंसान आज तक नहीं देखा, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मनसब के लिए काम करता था, सिर्फ और सिर्फ अपने तालिब इल्मों के लिए काम करता था, और बाकी वक्त तमाम हर वक्त अपना अल्लाह के बारगाह में सर्व करता था। और मालिक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल मताउ दुनिया करीम। हज़रात, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला